Very good afternoon to everyone. In our previous class of social science, we had started off the chapter power sharing, right? And first, I had done the summary. In the chapter, we had read about two different countries. One is Sri Lanka, that is our neighbor state, and the second one is Belgium. दोनों में हमने क्या फर्क देखा था that in both the countries on the basis of language spoken, like in Belgium the people spoke Dutch, French and Germany, and in Sri Lanka it was Sinhala and Tamil. There were regional conflicts, मीन्स जिस रीजन में वो लोग रहते थे वहां उसके लिए उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था. इन कंट्री ऑफ बेल्जियम the people of Dutch speaking community were more and French were less, but the French were powerful and rich. इस वजह से even though the Dutch were in majority, but they were not able to get all the benefits that a government should give for democratic citizens. On the other hand, when we talked about Sri Lanka, there it's an island country. There what happened is the people are belonging to different communities on the basis of the language. And the people who are ethnically, that is their indigenous citizens, Sinhalas, जो वहीं के हैं, they were given the majoritarianism, they were given the privileges, whether it was the language, whether it was their religion or the jobs in the government and university. In Belgium, the conflict was resolved with adopting a model जिसमें दोनों को equality दिया गया. How and why? The question comes कि अगर Dutch हमारे कम थे तो why equality was given? The reason is Dutch वैसे ज़्यादा थे लेकिन in the capital they were less in minorities. मैक्सिमम ब्राज़ील्स के अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो फ्रेंच के हैं, फ्रांस के बिलोंग करने वाले, फ्रेंच स्पीकिंग. सो दे वांटेड टू गिव एन इक्वालिटी कि आप कहीं पर भी रहते हो, योर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट विल बी इक्वल. दिस was adopted by both the communities, whether it was Dutch or the French. And for the local government, अपने अपने रिलीजन के लिए, अपने अपने रीजन के लिए, they were also provided with the community government. उनका जो मॉडल है that was so popular, it was so you can say successful. अब मैं यहाँ पर आऊंगी what is EU, यूरोपियन यूनियन. उस दिन आपको मैंने बताया था हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. See what happened is before world war जो होते थे, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, all the countries were scattered. अभी आप लोग 10th में पढ़ोगे how did Europe get this map. आज जो हम यूरोप का मैप देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, मतलब हम जो आज देखते हैं नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ये मैप कैसे बना था? अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट. हाँ, फ्रांस था, जर्मनी था, लेकिन जर्मनी उस वक्त में इट वाज मोर लाइक प्रूशिया. And we also used to have a country called Yugoslavia, which is right now not there. We used to have Czechoslovakia, which is right now into two different countries. तो अब जो हमारा मैप है जो यूरोप का, ये आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऐसा बना था. नाउ हर एक कंट्री पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान दे यूज्ड टू फाइट विथ ईच अदर फॉर पावर, फॉर रिसोर्सेस, कि उस कंट्री में ज़्यादा रिसोर्स है तो हम उसको जो है ओवर पार कर लें. लेकिन बाद में आफ्टर द डिवास्टेशन इन वर्ल्ड वॉर 2 सारी कंट्रीज को ये बात समझ आने लगी विद द इंसेप्शन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस. सब कंट्रीज को समझ आने लगा
that it is better कि हम एक साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें. Rather than fighting with each other, it is better we fight on economic ground. तो कंट्रीज जो थी उन्होंने खुद को in different parts of the world, like in Asia also we have a group. तो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, उन्होंने खुद को एक यूनियन में बना दिया. आपको पता है इस यूनियन का सबसे सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज यूरोपियन यूनियन, EU. इनका अपना एक फ्लैग है. दे हैव देयर ओन फ्लैग. मतलब अगर आप यूरोप में जाते हो एंड यू आर विजिटिंग 4 और 5 कंट्रीज, इन सबको हम यूरोपियन यूनियन के अंदर लेकर आते हैं. मतलब देयर आर मोर देन 40 कंट्रीज. एंड जब ये लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, गुड्स को लेकर जाते हैं, तो दे हैव रिमूव द ट्रेड बैरियर्स. दे हैव, मतलब कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बिजनेस करने का जो तरीका है वो बहुत ईज कर दिया है. They also have a currency, यूरो. मतलब मान लो आपको फ्रांस जाना है तो फ्रांस की करेंसी आपकी फ्रैंक है, लेकिन अगर आपके पास यूरो है, नॉर्मली हम यूरो ही लेकर जाते हैं, अगर आपके पास यूरो है तो आप फ्रांस में भी उसको चला सकते हो, आप जर्मनी में भी उसको चला सकते हो, आप किसी और कंट्री में भी चला सकते हो. आपको अलग अलग कंट्री में जाने के लिए अलग अलग करेंसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती. You have a single currency which is called as euro. And euro की जो वैल्यू है वो डॉलर से ज्यादा है. If डॉलर की वैल्यू $1.72 है तो यूरो is around 85. And you can move into this EU. मतलब अगर आप मान लो कि घूमने का प्रोग्राम बनाते हो, तो if you start from स्पेन से फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से मतलब कि नीदरलैंड, आप इन सब के बीच में जाओगे तो यू डोंट रिक्वायर सेपरेट वीजा. इनका जो वीजा होता है उसका नाम है शेंगन वीजा. तो जब यूरोप, when many countries of Europe came together to form यूरोपियन यूनियन, तो जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, कैपिटल है, दैट इज आपका ब्रसेल्स. मतलब EU इतना जो बेल्जियन मॉडल था, दैट वाज सो सक्सेसफुल दैट ब्रसेल्स वाज टेकन एज द कैपिटल और द हेडक्वार्टर फॉर EU. राइट नाउ द नेक्स्ट part which we will be doing today is why is it desirable. This particular question comes for 3 marks also, and sometimes you are asked only to write the part, that is moral and prudential. Moral and prudential. Now why power sharing is desirable, मतलब क्यों पावर को शेयर करना चाहिए, why it is important, why it is desirable. So there are 2 reasons that you have to write. One is prudential and second one is moral. So what is the meaning of prudential? वैसे अगर हम डिक्शनरी को उठाते हैं तो prudential का मतलब होता है something which is rational, means correct, and moral होता है which is from our heart. If we are accommodating everyone, we should give equal chance to everyone. Why power sharing is desirable. Thus, 2 different sets of reasons can be given in favor of power sharing. First, because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a way to ensure stability of political order. जैसे इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे, even in our country if you look, the first thing is we have shared our powers with different social groups. यानी हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की communities हैं. We are having different kinds of social groups because of the caste, because of the religion, मतलब different. But why? Otherwise
हर एक को लगेगा इफ द पावर इज नॉट शेयर्ड, इफ इक्वल पार्ट इज नॉट गिवन टू ऑल, सबको नहीं दिया जाएगा तो दूसरे को लगेगा इसे ज्यादा मिला, एंड इट विल लीड टू, डेफिनेटली अगर हम आपस में लड़ेंगे तो वायलेंस होगा, एंड वायलेंस होगा तो नेचुरल है कि पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आएगी. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. हमारे यहाँ पर 1947 में, 1945 में, in fact not 1947, 1945 में the Muslims were alienated, और उस वक्त में मुस्लिम्स को लगा था कि मे बी अगर मतलब कि वो इंडिया में रहेंगे तो हो सकता है कि दे मे नॉट गेट द प्रिविलेजेस, द बेनिफिट्स जो हिंदू को मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे डिमांडेड अ सेपरेट पाकिस्तान. ये डर था, अब होगा या नहीं होगा वो हम नहीं जानते, हुआ होगा या नहीं जानते, but that was the fear from the Muslim community that Pakistan was created. पाकिस्तान का क्रिएट होने का कारण ही यही था कि उनको लगा कि अगर वो इंडिया में रहे तो हो सकता है मेजॉरिटी रूल हो जाए. इवन राइट नाउ ऑल्सो मान ली देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज जिनके पॉपुलेशन कम है, जिनको हम माइनॉरिटीज बोलते हैं. माइनॉरिटीज इज नॉट अ स्लैंग वर्ड, इट इज जस्ट उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है. अगर मेजॉरिटी उनके ऊपर रूल करेगी तो व्हाट विल हैपन? They will feel that they are not getting all the benefits. Tyranny of the majority is not just oppressive, it often brings ruin to majority as well. ये है पहला. Power sharing is desirable. The first is it is a prudential reason. It reduces the conflict. Prudential reason क्या रहेगा? It reduces the conflict. The first reason is prudential, and prudential का मतलब है it will reduce conflict. The second is power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. यानी कि सारे के सारे लोग, हम ही तो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के किसी भी रूल से इफेक्ट होते हैं, whether it is raising the टैक्स लेवल, वेदर इट इज इंक्रीजिंग एनी कोटा, कुछ भी होगा तो हम ही लोग हैं. किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे शुड बी गवर्न, एंड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन where citizens through participation acquires a stake in the community. Stake मतलब उनको भी हिस्सा मिलता है. हमारे यहाँ पर you all have read in class 9, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, that anyone can contest elections, and we also have universal adult franchise. हमारे यहाँ हर एक इंसान का जो वोट है वो बराबर होता है, whether you are belonging to majority community, minority community, boy, girl, anyone. And anyone can contest election irrespective of his caste, color, religion, anything. That is how we participate in the government. लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था. The political rights of Tamils were less than Sinhala. So it is the moral reason. So let us call the first set of reasons as prudential, and second is moral reason. Prudential stress power sharing will bring better outcome, मतलब reduce conflict, and moral emphasis it is valuable क्योंकि सबको participation का बराबर हिस्सा मिलता है. Right? This is one question which comes in your 3 marker. And sometimes it comes only in a very जैसे last year it was only 1 marker, so you just had to match them. So reducing conflict, prudential, and better you can say harmony, moral.
more participation, moral. मोर पार्टिसिपेशन, मॉरल रीजन. क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो जब तक उनको वो आप दोगे ही नहीं, when unless and until you don't give them that right, you cannot call your government as democratic. This is how two reasons are defined. Now this one जो हम अब पढ़ने वाले हैं, this is the question which comes for 5 marks. It will, मतलब कि this question comes for complete 5 marks. What are the different forms of power sharing? या ये वाली जो लाइन है, in modern democracy power sharing arrangements can take many forms. Explain. दोनों का मतलब वही है, आपको इसको 4 पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, मीन्स हम कैसे पावर को शेयर करते हैं. ऑन द इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स. तो पावर को हम शेयर कैसे करते हैं, हाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट. लोग गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. And अगर एक ही इंसान या एक ही, जैसे कुछ कंट्रीज में क्या होता है, in some countries what happens is they have one unit डेमोक्रेसी. जहां कंट्री छोटी है, जहां कंट्री छोटी है, वहां पर क्या होता है, यूनिटरी कहते हैं हम उसको. वहां क्या होता है, द पावर्स आर गिवन से दिस इज द कंट्री, ये इतनी सी कंट्री है. तो क्या होता है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट रहता है, एंड देन देयर माइट बी स्टेट गवर्नमेंट्स. अब हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं. लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, वही गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो पूरे कंट्री को रूल नहीं कर पाती है, तो अपने ही सबऑर्डिनेट्स को 2 जगह पे डाल देती है. मतलब यहां पर भी सेम पार्टी रहेगी, यहां पर भी सेम पार्टी रहेगी. दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिटरी. यानी कि जो स्टेट्स हैं, दे आर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर यूनिट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. तो पहले ऐसा ही होता था, लोगों को लगता था दैट ऑल द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट शुड रिमेन इन वन ग्रुप. इट वॉज फेल्ट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड. मतलब अगर हम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस. बट नाउ these notions have changed. और पहले ये भी था, most of the countries were having the monarchical या फिर dictatorial. या तो monarchy थे या dictator था. ये तो डेमोक्रेसी तो अब है. 1900 तक, टिल 1900 इट वाज न्यूजीलैंड जहां यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था. और आपका 9th के आपके पास बुक होगी नहीं, इन द 9th बुक यू हैव दैट 60% of the world was under monarchy, but now more than 75% are democratic. More than. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. People rule themselves through institutions of self-government. मतलब ये हमारे ही तो representatives हैं. अब मैं जाकर आई एम नॉट एबल टू मेक द डिसीजन इन द पार्लियामेंट, तो मैंने जिसको वोट दिया है वो इंसान मेरे लिए, हमारे लिए ही इज मेकिंग द लॉ. जैसे आपके घर में आप पानी नहीं लेने जाते हो, आपकी क्लास चल रही है, तो आपकी जगह आपकी मम्मा या आपका ब्रदर या कोई और जाता है. तो दैट मीन्स वी आर रूलिंग आवरसेल्व्स. In a democracy, or in a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society.
In our country, you know, we are called as unity in diversity. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many as citizens possible. तो कैसे करते हैं? First, आपको जिन बच्चों को मैं पहले ही आई एम जस्ट टेलिंग that if you are not able to explain this, because now you are preparing yourselves from the board point of view, so in case you aren't able to, ये जो bold में लिखा है, this should be there in your answers. Power is shared among different organs of government: legislative, executive and judiciary. इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. बिकॉज हॉरिजॉन्टल पता है क्यों बोलते हैं? दिस इज बिकॉज द पावर, or what you call as the power to make, the power to rule, it is equal for three of them. मतलब लेजिस्लेचर को भी उतना ही पावर है जितना एग्जीक्यूटिव को है. अगर लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है उस लॉ को इंप्लीमेंट करने का. एंड जुडिशरी हैज द पावर टू इंटरप्रेट, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड तीनों, लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, तीनों को कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. दे हैव थ्री. लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर because it allows different organs placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures none of the organs can exercise unlimited power. ना ही legislature कैसे बनता हमारे यहाँ पर? How the legislature is formed in our country? Legislature का मतलब क्या होता है? Legislature का मतलब होता है law. Legislate का मतलब होता है law, यानी कि the law making power. And the law making power is with the government जो हमें रूल करती है. तो क्या वो वैसे ही लॉ बना सकती है? No. All the representatives जिनको हमने चूज किया है in the parliament, they all negotiate, they all debate, मतलब वो इस पे चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, और उसके बाद they make the law. So they cannot misuse their laws. Secondly, आपके एग्जीक्यूटिव्स हमारे यहाँ पर हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट. पॉलिटिकल यानी कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमपीज, हमारे एमएलएस, एंड परमानेंट हमारे जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स. So they are also supposed to follow some rules. अगर वो रूल को तोड़ते हैं तो लेजिस्लेचर के पास एंड जुडिशरी दोनों के पास पावर है उनको डिसमिस करने का. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. This results in a balance of power among various institutions. ये हम लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. We studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to parliament or state assemblies. मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी जो लॉ है, they cannot make it, they cannot implement it. Although judges are appointed by the executives, they can check the functioning or laws made by the legislators. This arrangement is called system of checks and balances. अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो जजेस होते हैं वो जुडिशरी है, लेकिन
इम्पीचमेंट मोशन से, अगर वो गलत काम करते हैं, इम्पीचमेंट मोशन से दे कैन बी रिमूव्ड. दैट मीन्स each one has the power to check each other. Each one has the power to check each other. ये आपके पेपर के अंदर 1 मार्कर क्वेश्चन आता, व्हाट इज द अदर नेम फॉर हॉरिजॉन्टल चेक्स एंड बैलेंसेस. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, वर्टिकल, फेडरलिज्म, और इसी के ऊपर आपका पूरा सेकेंड चैप्टर है. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. जैसे हमारे यहाँ पर पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है, union government, and right now we are having BJP at the center right now. It may change, it may not change, that depends on the work they are doing. And different government at provincial or regional level, यानी कि state governments अलग अलग हैं. Yes, BJP has been successful, so out of 28 states right now, in 22 states we are having BJP. लेकिन ऐसा भी रहा है कि सेंटर में आपका बीजेपी रहा, एंड इन स्टेट्स कहीं पर आम आदमी है, लाइक इन दिल्ली वी हैव आम आदमी पार्टी, इन मध्य प्रदेश वी हैव कांग्रेस, इन राजस्थान वी हैव कांग्रेस. तो अलग अलग जो है रीजनल लेवल में अलग गवर्नमेंट. बट ऐसे में क्या होता है, आपका जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, विच वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट chapter thoroughly. Union government has got more power, but some of the powers, some of the money, they have to share with the state government also. ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि हम जो अभी कृष्णा ने क्वेश्चन पूछा, what is the meaning of unity in diversity? Now Tamil Nadu belongs to Tamil, Andhra Pradesh belongs to Andhra, Kerala belongs to Malayalam, Karnataka belongs to Kannada. ऊपर आपका जम्मू कश्मीर belongs to कश्मीरी. सबकी अपनी लैंग्वेज, सबका अपना एक कल्चर. अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई भी एक ऐसा रूल बनाती है, हो सकता है कि वो जो रूल है that may not be applicable in that culture, that may not be applicable for that religion. इसीलिए उनके जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए एट द स्टेट लेवल द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, जिससे कि दे आर एबल टू रूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर्स. बट सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज्यादा हो जाता है बिकॉज इट इज responsible for the entire country, and state government का पावर होता है वहीं पर जहां पर they are required. The constitution has given separate subjects. किस सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट रूल बना सकता है, किस सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है. This has been done so that regional level पर भी we are able to rule properly. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we call it as central or union government. The government at the provincial or regional level are called by different names. हमारे हम states बोलते हैं, अलग अलग countries में अलग अलग होता है. In some countries they are called as duchies and cantons. Cantons बोलते हैं, like Switzerland के अंदर they call it as cantons. हर एक जगह पे स्टेट नहीं बोलते हैं. दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज. देयर आर, अभी ये जो मैंने बताया था ऊपर, आपको मैंने एक डायग्राम बना के बताया था, ये वो है. आपके पेपर में आता है डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट. देयर आर मेनी कंट्रीज where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours there are different levels of government. The constitution clearly lays the powers of different levels of government, like what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. It is called federal division.
The same principle can extend to levels of government lower than state government. जैसे हमारे यहाँ पर रूरल एरियाज में पंचायत है, एंड इन द अर्बन एरियाज, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारा म्यूनिसिपैलिटीज है. Let us call division of power involving higher and lower level as vertical division. We shall study at length in next chapter. Next is power may be shared among different social groups. यानी अलग अलग रिलीजन, जैसे हमारे यहाँ बामसेफ है, दैट इज आपका, इट इज अ group of minorities. Then we have minority group for different languages also. Muslim minorities हैं, Christian minorities हैं, then आपके Sikh minorities हैं. जैसे the same is called as community government in Belgium. हमारे यहाँ पर उसको Sikh minority, Muslim minority ऐसे दिया हुआ है. मतलब उनको कुछ पावर्स हैं. कुछ एरियाज में they can make their own rules. Like in our country, we follow secularism. We do not follow any one religion. तो क्यों? क्योंकि they can make, अब मुस्लिम्स हैं, they have their own ideas, तो वो लोग अपना मदरसा जब चलाते हैं तो they have been given certain powers. ऐसे पावर्स हर एक रिलीजन या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप को दिया हुआ है. हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब क्यों बना हुआ है? वाई हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब है? ट्राइब्स आपके होते हैं स्पेसिफिकली दीज पीपल, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये लोग थे जो लोग पहले, दोज हु यूज्ड टू वर्क इन द फॉरेस्ट, बट they were not having that much of benefits of education and health, but they are limited also. ये minorities में है तो इनको जो है स्पेशल पावर्स दिए गए हैं. हमारे यहाँ यू नो दैट वी हैव द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब. तो दिस इज हाउ द पावर इज शेयर्ड. इन सम कंट्रीज there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. हमारे यहाँ still इतना women का नहीं है, but yes, economically weaker के लिए there are certain reservations. Last year we studied the reserve constituency. This type gives space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated. This method is used to give minority communities a fair share in power. मैंने आपको बताया ये वाली बात कि हमारे यहाँ पर we have the reservations also. We have some groups, बामसेफ करके है, which is one of the largest one. तो there are certain groups formed. इनको भी they have the, जैसे Muslims have the power to अपने अपने जो माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स, तो दे कैन टीच व्हाट दे वांट टू सर्टेन एक्सटेंट. दिस हैज बीन गिवन सो दैट देयर कल्चर इज ऑल्सो, उनका जो कल्चर है उसको भी हम फॉलो करते हैं. पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in political party, pressure group and movement control or influence those in power. अब हमारे यहाँ पर सी वी हैव द पॉलिटिकल पार्टी विच इज रूलिंग यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो रूल नहीं करता, जो हार जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन. उसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन. तो क्या हमारे ऑपोजिशन को कोई पावर नहीं होता? नो, द ऑपोजिशन ऑल्सो हैज अ पावर. आपको पता है जो मेन ऑपोजिशन होता है ना, उसका जो हेड होता है, लीडर होता है ना, उसको उतनी सैलरी मिलती है जितनी की कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है. हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. नाउ व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स? व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप्स आपके होते हैं, प्रेशर का मतलब होता है पुटिंग फोर्स. तो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो लोग गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करते हैं
to change the decisions. ट्रेड यूनियन, आपने देखा होगा अगर दाम बढ़ जाते हैं तो ट्रेड यूनियन गो ऑन स्ट्राइक. बैंक यूनियन, तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स. मतलब दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू चेंज देयर डिसीजंस. दे गो फॉर रैली, दे फॉर्म मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन. तो दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracy, this forms competition. मतलब एक जीतता है तो दूसरा opposition बन जाता है. Such competition ensures power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. For example, कई बार क्या होता है जो मतलब कि रिजल्ट आता है तो देखा जाता है कि no political party has got the clear majority. मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो उनको जो है मेजॉरिटी नहीं मिला. तब क्या करते हैं, तब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हाथ मिलाती है एंड दे फॉर्म कोएलिशन और अलायंस. समटाइम्स दे जॉइन देयर हैंड्स एंड कंटेस्ट इलेक्शन. अलायंस यूपीए जो है इट इज हेडेड बाय कांग्रेस और उनको जो भी सपोर्ट करता है वो सब कांग्रेस के अलायंस है. एनडीए फॉर्म बाय बीजेपी और उनको जो भी सपोर्ट करता है दे आर ऑल एनडीए अलायंसेस. तो ऐसे भी हम लोगों ने किया हुआ. हमारे यहाँ पर वी हैव टू मेजर अलायंसेस, एनडीए एंड यूपीए. तो इस तरीके से भी शेयर करते हैं. अब जो एनडीए है, मतलब एनडीए के अंदर देयर आर स्मॉल पार्टीज विच बिलोंग टू स्पेशल कम्युनिटीज और दे में बिलोंग टू स्पेशल social groups. In our country we have Congress, major parties में BJP, BSP. तो BSP जो है that is आपका majorly it is belonging to people who are downtrodden, those who are belonging to backward classes. तो BSP भी अपना जो है अलायंस में फॉर्म होती है, यानी कि सबको इक्वल शेयर मिल रहा है. In a democracy, we find interest groups such as traders, businessmen, industrial farmer, industrial workers, जो मैंने भी आपको बताया that they put the pressure. अगर कोई भी मतलब कि अगर they put the pressure, they may form a union. अगर गवर्नमेंट के रूल्स उनको सही नहीं लगते, जीएसटी आया था तो उन लोगों ने मूवमेंट निकाला था. अभी ऑटो का स्ट्राइक होने वाला था 2 दिन पहले, बट इट वॉज कैंसल्ड. So this is pressure group. This is pressure group. ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये वाला this came in the paper. ये जो फोटो बनी हुई है ना जोकर सी, ये आया था पेपर में. It came in the paper. This is which 4 type of power sharing is it? Means whether it is vertical, whether it is horizontal, whether it is among the different political parties, ऐसे करके ये आया था. There is a third one, yeah. The first one is vertical, first one is horizontal, second is आपका vertical, third is among different social groups and fourth is आपका pressure group. So let us see that example कि क्या लिखा हुआ है. The Bombay High Court ordered Maharashtra state government, यानी कि हाई कोर्ट आपका जुडिशरी एंड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आपका लेजिस्लेचर, to take immediate action and improve living conditions for the 2000 odd children and 700 children homes in Mumbai. यानी कि this can be called as horizontal. This can be called as horizontal क्योंकि बराबर है. High court is belonging to judiciary and state government belongs to legislature. The government in Ontario state in Canada has agreed to land claim settlement with अब ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी गवर्नमेंट. द मिनिस्टर
responsible for native affairs announced the government will work with aboriginal people in a spirit of mutual respect and cooperation. यानी कि ये आपका जो हमारा सेकेंड वार था, among different social groups. Russia's two influential parties, Union of Right Forces and Liberal Yabloko movement, agreed to unite their organization into a strong right coalition. ये हमारा लास्ट वाला यानी कि ये वाला alliance form, power sharing among different political parties. The finance minister of various states in Nigeria got together and demanded that federal government declares its sources of income, यानी कि vertical, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग. तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे उन्होंने कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है दे शुड डिक्लेयर द सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि दिस इज वर्टिकल पावर शेयरिंग. The first one is horizontal, second is community among different community and social groups, third is among different political groups, and fourth is vertical power sharing. Right? This is how the questions may come. So this is what we call as the chapter power sharing. I'll just quickly revise it once again to sum up it, so that we start with our assignments in the next class. The first is power sharing का मतलब क्या? What is sharing? Sharing is किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ बांट कर खाना, बांट कर यूज करना. Like you share your room with your siblings. You might be sharing your some of the stationery with your siblings. हाँ, जो बच्चे अलग, एक बच्चा है वो अलग बात है, but you might be sharing. हम लोग हमेशा कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? छोटे बच्चे होते हैं तो वी कॉल इट. तो पावर इज ऑल्सो शेयर इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. इन बेल्जियम इट वॉज द डच, फ्रेंच एंड जर्मनी. तो सबके अपने कल्चर होते हैं, सबका अपना एक डिजायर होता है. इन श्रीलंका सिन्हाला, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स. इन इंडिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमिल्स, बंगाली, मतलब हम अलग अलग हैं, है ना? तो वी आर ऑल डाइवर्स पॉपुलेशन और सबके अपने रूल्स, अपने अपने कल्चर, सबका अपना होता है. अगर गवर्नमेंट इज गिविंग प्रायोरिटी टू ओनली वन कम्युनिटी, ओनली वन ग्रुप, क्योंकि वो ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन? बाकी लोगों को लगेगा हम लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं. सो दैट इज व्हाई इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शेयर द पावर इज शेयर्ड. नाउ we had read two examples. One was of Belgium, where different communities, different languages were spoken. But the French were rich, so they became more powerful. On the other hand, in Sri Lanka, the Sinhala gained the popularity because they were in majority. In Belgium also there was a conflict, and in Sri Lanka also. In Belgium, the amendment was done 4 times. The constitution was amended, but in Sri Lanka nothing was done. There was an act which was passed in 1956. In Belgium, ultimately they gave equality in all the areas. उन्होंने बेल्जियम को 2 हिस्सों में बांटा, जहां फ्रेंच के लोग फ्रेंच वाले प्रोविंसेस में रहते हैं अभी भी, एंड जो डचेस हैं दे लिव इन देयर ओन प्रोविंसेस. बट इन द यूनियन गवर्नमेंट बोथ आर हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्टर्स. दोनों के इक्वल मिनिस्टर्स हैं. हाँ, अगर कभी स्पेसिफिकली मतलब कि फ्रेंच के लिए कोई बनाना है या फिर डच के लिए कुछ बनाना, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से एक बार सलाह मशवरा किया जाता. So they accommodated their population. But in Sri Lanka, because maximum people belong to Sinhala, so the
accommodation was not done, which resulted in conflicts among the people. So to remove this conflict, power sharing is desirable. And for more participation, to allow people participating in government, power sharing is desirable, जिसको हम बोलते हैं prudential and moral reason. Next is, how do we share the powers? First, we share power in horizontal way. Horizontal का मतलब है जब गवर्नमेंट को हम बराबरी में बांट देते हैं. 3 different organs in our country: the legislature, which is making the law, the executive, which is implementing the law, and judiciary, जो कि ये देखता है कि the laws are implemented and they are the guardian of the constitution also. They also remove the disputes. और तीनों जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं. यानी कि अगर लेजिस्लेचर गलत करता है तो जुडिशरी भी आवाज उठा सकता है एंड एग्जीक्यूटिव्स भी. एग्जीक्यूटिव गलत करेगा, इन द सेम मैनर दे कैन टेक. जुडिशरी गलत करेगा तो द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर कैन आल्सो चेक देम. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, क्योंकि तीनों को बराबरी पावर मिल रहा है इसीलिए हॉरिजॉन्टल, एंड तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं इसीलिए चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट इज वर्टिकल, फेडरल. हम वर्टिकल को फेडरल भी कहते हैं. व्हाई? वर्टिकल में क्या होता है, यूनियन, बिकॉज इन कंट्री लाइक इंडिया जहां नंबर ऑफ पीपल आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो एक यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट रूल ऑन एवरीवन. क्योंकि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बनाती है विच इज नॉट सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो इट विल अगेन लीड टू वायलेंस. तो यूनियन गवर्नमेंट हैज गॉट पावर टू मेक लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, लेकिन कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है. हमारे यहाँ इनको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. इन सम अदर एरियाज इट इज कॉल्ड एज कैंटॉन्स. स्विट्जरलैंड वगैरह में इसको कैंटॉन्स बोलते हैं. ऑन द स्टेट लेवल, द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू दैट एरिया मेक्स अ लॉ, बट उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इट इज गिवन कि किस पर वो लोग लॉ बना सकते हैं. एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट मोर पावर. In our country, we also have a third level, that is the local government, panchayat and municipality. Then this is called as vertical, क्योंकि सबसे ऊपर आपका यूनियन, फिर नीचे स्टेट और उसके नीचे आपका लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट का पावर कम है, उससे थोड़ा ज्यादा स्टेट का है और बहुत ज्यादा आपका यूनियन का है. Then is आपका पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अलग अलग मतलब कि कास्ट को बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो वी हैव. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यू हैव द गवर्नमेंट विच इज यू हैव अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे अलायंस फॉर्म करते हैं. Sometimes it may be after the elections they may form the alliance, which is called as coalition, and sometimes even before they contest election वो लोग एक बन जाते हैं. जैसे कि I am belonging to A party, you are belonging to B party, हम कहते हैं कि हम लोग मिलकर गठबंधन बना लेंगे, एंड जिस पार्टी को भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो पावर में आएगा और बाकी उसको सपोर्ट करेंगे. We also have the alliance politics. So in this manner power is shared. So this is the entire chapter, power sharing, right?